Pitama is talking to Pandavas about how do you not know the Swaroop of Sri Krishna, and you're still behaving ignorant because you're still treating Krishna as your cousin brother or as your friend. Uh, and the last sentence we finished with was our sins or our paths separate us from the God. And pap is jad, and that is ignorance. I've written, that's why I've got the notes. Nice. No, that's correct. That's because we are fool, right? very touched my heart. Was Lord can only be known by its devotees or by the gurus. So ignorance can only be removed by the devotees or the gurus. Correct. Correct. Amazing. Thank you. Thank you, Mataji, for a nice recap. So today we'll do text number 21. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? Okay. Yes, Prabhuji. So Canto 1, Chapter 9, verse number 21. Sarvatmana samadresho. Okay, first I'll do some prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Nyanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraet nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhakti naistaki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopakumaraya govindaya namo namaha. All right, X21. सर्वात्मना सन्दृशो हि अव्यस्न अहं कृते तत्कर्तम् अधिवैषम्यं निर् निर्वद्धस्य कवचित्. Being the absolute personality of Godhead, he is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and he is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material inebriety. He is equibalanced. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Yes, Prabhuji, I can read. Because he is absolute, there is nothing different from him. He is Kaivalya. There is nothing except himself. Everything and everyone is the manifestation of his energy, and thus he is present everywhere by his energy, being non-different from. Just a sec, Prabhuji, मेरा थोड़ा बड़ा हो गया. Oh yeah, being non-different from it. The sun, the sun is identified with every inch of the sun rays and every molecule particles of the ray. Similarly, the Lord is distributed by his different energies. He is Paramatma or the super soul present in everyone as the supreme guidance, and therefore he is already the chariot driver and counsel of all living beings. When he therefore exhibit himself as a chariot driver of Arjuna, there is no change in his exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrate him as the chariot driver or the messenger, since he has nothing to do with the material conception of life, because मेरा change हो जा रहा है. Just a second. Okay, okay. Because his absolute spiritual identity, there is for him no superior or inferior action. Being the absolute personality of Godhead, he has no false ego, and so he does not identify himself with anything different from him. The material conception of ego is equivalence in him. He does not feel therefore inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only he can bring about service from the affectionate Lord.
हरे कृष्णा, थैंक यू बाबा। ऑलराइट, बहुत ही अमेजिंग परपोर्ट है, और अच्छा, बहुत ही अमेजिंग इसका ये ट्रांसलेशन है, और ये श्लोका है कि इसमें भीष्म पितामह, अब हमारा थीम क्या चल रहा है कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, राइट। और वो अब कृष्णा को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लास्ट वर्स से ही स्टार्टेड डूइंग दैट। तो लास्ट वर्स में उन्होंने जैसे बोला था युधिष्ठिर महाराज को और अर्जुन को कि जिनके साथ तुम घूम रहे हो, काउंसलर बन के, फ्रेंड बन के, और ये नेफ्यू बन के, ये सब इसमें घूम रहे हो, वो खुद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, या जो कि तुम्हें पता नहीं है, या वट एवर, राइट। उनको तो पता तो था, बट जो भी है वो लीला कर रहे थे, राइट। बट नाउ ही इज टेलिंग मोर क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा रसा आने लगेगा, क्योंकि जब भी कृष्णा की बात, डायरेक्ट कृष्णा की बात हो रही है भागवतम में, ऑलमोस्ट आई वुड से फॉर द फर्स्ट टाइम कि कृष्णा की क्वालिटीज आ रही हैं। अभी तक फर्स्ट चैप्टर में नहीं, तो मैक्सिमम तो ये 10th चैप्टर में है, बट अब कृष्णा की क्वालिटीज भीष्म पितामह के मुख से आ रही हैं, right? So what he's saying, he is present in everyone's heart. और ये हमारे भगवत गीता में भी ये हमें मेंशन्ड है, ये कि ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट। कहाँ पे मेंशन्ड है? 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। हम्म? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय, सर्वस्य, जितने भी लोग हैं उनके हृदय में रहता हूँ, और उनके हृदय में बैठ के मैं क्या करता हूँ, क्या देता हूँ? मत्ता, स्मृति, ज्ञान, ये तीन चीजें देता हूँ। रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ये तीन चीजें मैं उनको ये देता हूँ उनके हृदय में बैठ के, राइट। और क्या करते हैं वो कृष्णा? नाउ माय क्वेश्चन के, और वो भी छोड़ो कि क्यों बैठते हैं वो, दैट इज द बेटर क्वेश्चन, कि हमारे हृदय में क्यों बैठे हैं वो आके, उनकी क्या पड़ी है? वाई इज सिटिंग इन आवर हार्ट? Because he's our Supreme Father and he cares about us. ही केयर्स अबाउट अस। But yeah, that doesn't justify the reason. I think so that we can go back to him one day. तो वो तो अगर नहीं भी हृदय में बैठेंगे तो तब भी जा सकते हैं कि नहीं? मतलब अगर हृदय में रहेंगे तो हमारे लिए चांसेस ज्यादा है ना, ही इज वेरी क्लोज टू अस ऑल द टाइम, गिविंग अस डायरेक्शंस। ओके, वेरी गुड, हाँ, कि वो हमें प्रभु जी, गाइड कर रहे हैं, यस, गुड। he permit and oversee and permit sanction the our desires, कुछ जो भी होते हैं वो करेक्ट, देखते हैं हम क्या करते हैं। हाँ, देर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, या वेरी वेरी गुड। आई जस्ट वांटेड टू या प्रोवोक लिटिल बिट के। Can I add one more thing? This last thing, Prabhu. Is that a string that he wants to keep us connected to him? That string, that one string that keeps us connected to God. That's यस, why he wants to stay in our heart. करेक्ट, करेक्ट, सारे सारे आंसर सही हैं। हम एक एक करके उन पे और थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो विल स्टार्ट विद मितुल प्रभु, है ना, कि वो उपदृष्टा अनुमंता च, ठीक है, वो ओवरसियर एंड सैंक्शनर। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारे हृदय में बैठ के हृदय की जो डिजायर्स आ रही हैं, राइट, और जो एक्शंस हम ले रहे हैं उन सबको वो देख रहे हैं, जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं, राइट। आज ही मैं सर मंगला को बोल रहा था, मैंने कहा, कोई बात चल रही थी, तो मैंने कहा ये इमेजिन करो, कृष्णा बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके एक्शंस राइट। हम सबके लिए एप्लीकेबल है कि हमारे एक्शंस वो देख रहे हैं। जैसे ही ये सोचते हैं हम एकदम सीधे हो जाते हैं कि बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं, और अंदर बैठे हुए हैं तो पता है कि हाँ यार, जितनी भी डिजायर्स आ रही हैं, गंदी डिजायर्स, अच्छी डिजायर्स, नोट हो रही हैं वो, राइट, नोट होके, क्यों, हमसे वो, जैसे और भी बोला ना रुचिता माता जी ने, पूजा माता जी ने, कि वो हमसे प्यार इतना करते हैं कि वो हमारे साथ आके हमारे हृदय में बैठे हैं, और वो डिजायर्स नोट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, क्या चाहिए आपको, बताइए, ये चाहिए, ओके, आई एम नोटिंग इट डाउन, आई एम नोटिंग इट डाउन। अभी कल मैं अविराज के साथ वहाँ गया, बच्चों के साथ ना मार्केट गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा पापा ये ले दो, मैंने ले दिया, पापा वो ले दो, मैंने ले दिया, फिर पापा ये ले दो। मैंने कहा, बेटा कितना जंक खाओगे आप, कितना जंक लेके दूंगा आपको, आपने वेजिटेबल्स और ये सब तो खानी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैंने ये भी क्यों लेके दिया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अविराज, मैं आई लव ब्लाइंडली, मेरा लव जो है तुम्हारे लिए वो ब्लाइंड लव है। अगर मेरा तुम्हारे साथ एक्चुअल लव होता ना, तो मैं तुम्हें ये जंक नहीं लेके देता, बट क्योंकि मेरा ये ब्लाइंड लव है,
टुवर्ड्स माई चिल्ड्रन, मैं तुम्हें जो जो जंक बोलते हो मैं तुम्हें लेके दे देता हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कृष्णा का, फिर मैंने उसी से पूछा, मैं कहा कृष्णा का हमारे लिए लव है कि ब्लाइंड लव है? कहता लव है। तो बट फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, कृष्णा का भी हमारे लिए ब्लाइंड लव ही है ये, इजंट इट? अगर कृष्णा का ब्लाइंड लव नहीं होता तो हम आज जो हमारी स्थिति आज है, हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में बैठ के सड़ रहे हैं, वो नहीं सड़ते। बिकॉज कृष्णा बोलते हैं कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए। वो हमारी चाह पूरी करते 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 हम ब्रह्मा बने, ब्रह्मा से डेमी गॉड बने, फिर नीचे गिरते गिरते हम कहाँ गिर गए हम? because of our desires and because of his blind love for us. I could be wrong, but this is what I shared my realization. I could be wrong. अभी विष्णु प्रेशर प्रभु नहीं है इस कॉल में, but he can correct me, or if anyone else can correct me, अगर उनको लगता है कि वो ब्लाइंड लव नहीं है और लव ही है। क्योंकि अगर लव कर रहे होते तो वो हमें मना कर देते ना कि नहीं, बट वो ब्लाइंड लव है। वो बोलते हैं कि 84 लाख योनियां बना दी यार, कौन करता है ऐसे? 84 लाख योनियां। आपको उड़ने का शौक है, बर्ड बन जाओ। आपको स्विमिंग का शौक है, शार्क बन जाओ। इतनी इतनी फैसिलिटी, और अच्छे से पूरे अच्छे से तसल्ली करो अपनी जो भी डिजायर है। तो इज लाइक अ चिप, ही स्टोरिंग इट हार्ट में बैठ के, राइट। एंड देन किसी ने बोला था कि वो हमें गाइड कर रहे हैं इंटरनली। अगर अंदर है तो अंदर से हमें गाइड करने के लिए हैं, राइट, लाइक अ चैत्य गुरु। चैत्य गुरु भी बोलते हैं इनको। तो अगर हमें गाइड कर रहे हैं तो अगेन मेरा क्वेश्चन आता है, तो हमें वो हमें वो सुन क्यों नहीं रहा? वो गाइडेंस क्यों, पता क्यों नहीं चल रही हमें वो गाइडेंस? व्हाई कांट वी लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शन व्हाटएवर ही? नॉट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हमें अभी उतनी क्षमता ही नहीं है समझ पाने की, और हमें इतना नरथा है, हम्म। तो हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे बट एंड इतनी हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, एंड देन वी कैन रियलाइज वन डे कि गॉड क्या बोल, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, उनको समझ पाते हैं फिर। बट क्या? सेक्शंस, बट हमें समझने में टाइम लगता है उस चीज को। हम्म। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि थोड़े देर बाद ऐसा होगा, अगर हम भक्ति में बढ़ जाएंगे बहुत जन्मों के बाद, या वेन एवर इट इज, हाँ, तो हमें वो अंदर से आवाज सुनाई देगी या हाँ, कुछ और? डेफिनेटली भगवान डेफिनेटली हमें बहुत तरीके से समझाते हैं। हम्म। वो रियलाइजेशन हमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, द मोर वी आर इनटू द डिवोशनल सर्विस। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आज की डेट में भी ये तो प्योरीफाई होने के बाद हमें आवाज सुनाई देगी। द पॉइंट इज कि जब हम प्योरीफाइड नहीं हैं, इंस्ट्रक्शन की तो तभी जरूरत है ना जब हम इस स्टेज में हैं। अगर वो अनर्थ निवृत्ति और वो सब कुछ हो ही गया हमारा, तो फिर तो हम पहुंच ही गए। अगर हमें डेफिनेटली। तो प्रभु जी इसके लिए भगवान ने बोला है ना, गुरु साधु और शास्त्र, तीन लोगों से वो हमें गाइडेंस मिलेगा। करेक्ट, तो वो इंस्ट्रक्शंस अभी भी हैं। वो इंस्ट्रक्शंस की सोर्स थोड़ी सी इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट, इट इज कमिंग थ्रू गुरु। इट्स यू कैन से इवन डायरेक्टेड, है ना? तो वो जो गुरु है वो हमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और वी जस्ट हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। उस दिन दीपक प्रभु के साथ ये कन्वर्सेशन चल रही थी कि क्या, अगेन इट्स डिबेटेबल, आई डोंट नो द आंसर, कि क्या हमें इंस्ट्रक्शंस जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इट्स अ वेरी डीप पॉइंट, हाँ, कि जो हमें शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको, और या जो हमें गुरु ने इंस्ट्रक्शन दी है, क्या हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इट्स डिबेटेबल अगेन। प्रभु जी बोनाफाइड है तो हम्म। करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। हाँ, बोनाफाइड है तो करना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन उस दिन आई थिंक डिस्कशन हो रही थी, तो दीपक प्रभु, विष्णु प्रेशर प्रभु भी थे, तो वो बोल रहे थे कि शुक्राचार्य ने इंस्ट्रक्शन दी थी बलि महाराज को कि तुम वामन अवतार हैं, ये विष्णु हिमसेल्फ ही केम, एंड देन व्हाई आर, डोंट गिव हिम, डोंट लिसन टू हिम। तो बट प्रभु जी, लेकिन वो तो डिमोनियक मेंटालिटी थी ना। डिमोनिक था, वो डिमोनिक मेंटेलिटी थी। एंड दूसरा, जब उसको, जब बलि को पता चल गए कि वो साक्षात भगवान हैं सामने, राइट, तो हाउ कैन ही इग्नोर हिम? है ना? पूजा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे?
Prabhuji, just wanted to add that if that guru is taking us away from Krishna, then of course we should not listen to that instruction. But that's the point, right? We don't know because we are ignorant, है ना, हमें नहीं पता है. So that's the point, right? कि we should blindly follow or we should question the instruction. That is the whole point. अगर हमें पता ही नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन जो उसने दी है, क्या वो Yeah. मुझे कृष्णा से दूर लेके जा रही है कि कृष्णा के पास लेके आ रही है, वी डोंट नो. दैट इज द पॉइंट ऑफ गुरु ना. It भी बहुत मैटर. Yeah. आपका इंटेंट है, you want to go closer to Krishna. So whatever instruction your guru is given, Krishna is watching you. So he will know your intent is, what is your intent. चाहे वो गुरु इंस्ट्रक्शंस गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, पर आपका इंटेंशन तो ये है ना, आप कृष्णा के क्लोज जाना चाहते हो. हाँ, तो एक तो जैसे भी करेक्ट. सही की बात गलत नहीं होगी, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा की उसमें मर्जी होगी. हाँ हाँ, एज लॉन्ग एज, जैसे मिथुन प्रभु ने कहा कि एज लॉन्ग एज द गुरु इज बोनाफाइड, सो वी शुड, आई थिंक दिस इज माय टेक, कि अगर गुरु बोनाफाइड है तो ब्लाइंडली उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट. क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, और अगर हम उसको समझने जाएंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगी एट दिस पॉइंट. जैसा कि आपने भी कहा ना रुचिता माता जी, कि हमें नहीं पता चलेगा, वो बाद में जाके पता चलेगा जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, जब अनर्थ चले जाएंगे, बट हमें तो अभी चाहिए ना. तो द पॉइंट इज कि जो भी गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अगर वो हमें समझ में नहीं भी आ रही, स्टिल वी शुड फॉलो इट, still we should blindly follow it. This is my take. Maybe if someone can correct me, I'm happy to be corrected, but this is my take. आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस व्हाट यू आर सेइंग. मुझे इसमें कोई डिबेटेबल इशू लग ही नहीं रहा है. देयर इज हाँ, ओनली दैट यू शुड फॉलो. you should follow. That is the whole point of instructions, right? That's why अर्जुन ने भी यही बोला ना उसमें, भगवत गीता 2.7 में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि मेरे में दोष हैं और कृपणा हो गया हूं मैं, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी. So I'll follow your instruction, whatever you will say, right? So try to ask. Sorry, Prabhuji, but Krishna's being in the Guru's heart as well, he's also given Guru the forgetfulness as well, right? Correct, correct. So not necessarily that always, हाँ, yeah. फॉरगेटफुलनेस किसको देता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. फॉरगेटफुलनेस को किसको देता है? भगवत गीता के 16th और 17th चैप्टर में आते हैं डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज. तो जो लोग डिमोनिक हैं उनको वो बोलते हैं ओके तथास्तु, वही तो बोला, डिजायर फुलफिल करेंगे. अगर उनकी एथीस्ट जो हैं, एथीस्ट को बोलते हैं ठीक है, मायावाद क्या है, दे डोंट वांट टू बिलीव इन, इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इन मी, ओके तथास्तु, डोंट बिलीव इन मी, दे गिव फॉरगेटफुलनेस. सेम, आई मीन फॉरगेट अबाउट मायावादी, हमारे साथ भी तो सेम ही केस है. हम भूले हुए हैं ना कृष्णा को, वी आर, तो फॉरगेटफुलनेस जो हमें आई हुई है, तो हमें अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि वो फॉरगेटफुलनेस हट के वो रिमेम्बरेंस में आ जाए. बट अभी तो हम भी फॉरगेटफुल ही हैं, बिकॉज वी वांटेड टू. दैट इज व्हाई ही गेव अस. दैट इज व्हाट आई से, कि ही ब्लाइंड लव है. ही इज गिविंग वट एवर वी आर आस्किंग, ही इज गिविंग 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 गिविंग. So, and he is giving other things as well. So the choice is with us. He is giving both divine, demonic. वो सब कुछ दे रहे हैं, वो चॉइस हम पे छोड़ रहे हैं. अगर हम उधर जाना चाहते हैं, वो बोलते हैं उसमें कि आप अंधकार, डीप इग्नोरेंस में चले जाओगे if you don't wanna follow whatever I'm saying. If you keep choosing the wrong choice, you will go there. There's one more thing, प्रभु, अगर आप भक्ति में होते हो और आपके जो डिजायर्स होते हैं भगवान फुलफिल भी करते हैं, पर वो ऐसे करते हैं कि वो डिजायर्स दोबारा उठे ही ना. There's हाँ, another method also. करेक्ट. एज अ चैत्य गुरु, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, कि ही स्पेशली, एक ये दो तरह की डिजायर है, मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअल डिजायर. तो जो मटेरियल डिजायर है वो तो जैसे आपने कहा कि वो प्यूरिफाई हो जाएगी, बट अगर स्पिरिचुअल डिजायर है वो बहुत जल्दी फुलफिल्स वेरी क्विकली. कोई भी डिजायर आप ट्राई करके देखो, बहुत जल्दी फुलफिल होगी स्पिरिचुअल डिजायर. सो दैट्स इट. द लास्ट पॉइंट अगेन, हिज कॉजलेस मर्सी. सोचो उनको क्या पड़ी है, आराम से वो गोलोक वृंदावन में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपना वहां पे रास लीला कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं वहां पर. वो क्यों आएंगे वो यहाँ पर हमारे साथ? एक, और हमारे साथ भी छोड़ो, एक एक जीव जंतु के साथ हैं वो.
जो स्टूल में वर्म है, एक कीड़े के हृदय के अंदर भी बैठे हैं वो। कैन यू इमेजिन? अब ये ब्लाइंड लव नहीं है तो और क्या है ये कॉजलेस मर्सी नहीं है उनकी, तो और क्या है कि वो एक एक कीड़े के हृदय में भी जाके वहां पर भी उसके साथ, अगर वो नाली में है तो नाली में रह रहे हैं उसके साथ जाके वो, कि बेटा एक दिन तो मैं तेरे को वापस लेके जाऊंगा। अगर ये हम एक्चुअल में रियलाइज करें, ये सोचें, तो हम एक पल भी नहीं रह सकते यहाँ पे। अगर हम एक्चुअल में इस बात को रियलाइज कर लें कि कृष्णा हमारे हृदय में है, और हम कितनी 84 लाख योनियों पता नहीं कहाँ कहाँ से हम आए हैं, और वो हर टाइम हमारे साथ थे। क्यों साथ थे? हमें वापस लेके जाने के लिए। तो एक बार तो मेरी तरफ देख, एक बार तो मेरी तरफ मुड़ के देख। हम्म? जैसे बच्चा घर छोड़ के चला जाता है तो माँ बाप जाने देते हैं, क्या कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो टीनेजर, जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल वो बोलते हैं कि बेटा ये ले जाना, बेटा ये ले जाना। ठीक है, पूरी पूरी केयर करते हैं। वो बेटा रखता नहीं है अपने पास, वो अलग बात है। यहाँ पर वो जबरदस्ती घुसे हुए हैं, कि पर जबरदस्ती इन सेंस वो आए हुए हैं, बट वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, करने दे रहे हैं हमें जो करना है, राइट? बट ही इज प्रेजेंट एवरी इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। That's his causeless mercy, right? Which leads to his second quality. Second quality क्या बोली थी उन्होंने? कि he is let's share my screen. Second quality, ये फर्स्ट वाली हो गई ना, he is present in everyone's heart. Second is he is equally kind to everyone and he is equibalanced. Equibalanced है और equally, false ego वाला लास्ट में करेंगे। He is equally kind to everyone and he is equibalanced. अब मुझे बताओ, अगेन क्वेश्चन, राइट, कि क्या कृष्णा पार्शियल है, ही इज इक्वली काइंड टू एवरीवन, या वो इम्पार्शियल हैं? वो प्रभु जी Impartial. impartially partial, partial. इम्पार्शियल, पार्शियल, राइट, एग्जैक्टली। तो इम्पार्शियल कैसे हैं वो? कि ऑक्सीजन सबको बराबर मिल रही है, सबको बराबर ऑक्सीजन दे रहे हैं ना वो। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भक्तों को मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दूंगा, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त नहीं है उनको सांस, उनको आधी सांस मिलेगी। उनको भी बराबर ऑक्सीजन मिल रही है, सारी रिसोर्सेज उनको बराबर मिल रही हैं, भक्तों को, नॉन भक्तों को। एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली दैट, इवन जो उनका जो सर्कल है, जो पूरा सर्कल है, जैसे हमने हमने शायद आई थिंक पहले डिस्कस किया था ना, कि वो पूरा सर्कल क्या है, इम्पार्शियल का सर्कल है, कि भक्ति करने का मौका सबको दिया जा रहा है, बट उसके अंदर एक इनर सर्कल है जिसमें कि जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पार्शियल वाला सर्कल है, राइट, जिसके अंदर वो पार्शियलिटी करते हैं। सो ही इज इम्पार्शियली पार्शियल, सो ही इज इम्पार्शियल टू एवरीवन बट ही इज पार्शियल टू हिज डिवोटीज। और ये किसमें बोला उन्होंने? 9.29, आई ओपन इट। 9.29 वर्स में उन्होंने ये बोला है, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ते ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। I envy no one, nor I am partial to anyone. Clearly he said कि मैं किसी के साथ partial नहीं हूँ. I am equal to all. But, very important, but whosoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मेरा नाम भजता है भक्ति के साथ, वो मैं उसमें हूँ, and he is into me. He clearly announces that in 9.29. Otherwise, I'm impartial. I'm equal to everyone, right? And he also says that, sorry, मैं बार बार ये कर रहा हूँ। एक और पॉइंट इसमें वो क्या कह रहे हैं, परपोर्ट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम। सब कुछ कृष्णा में ही है, तो हाउ कैन बी ही बी इम्पार्शियल? he has to be partial, sorry, how can he be partial? He is impartial because सभी कुछ जो है वो उन्हीं का ही है, डिवोटी भी उनके, नॉन डिवोटी भी उनके, मैटर भी उनका, स्पिरिट भी उनकी, सब कुछ उनका ही है।
ईशोपनिषद में बोलते हैं ना वो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आई एम एब्सोल्यूट। मेरे में से एब्सोल्यूट, इन्फिनिटी में से आप इन्फिनिटी माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। ही विल स्टिल रिमेन पूर्णमिदम, वो ही इज फुल। फुल में से फुल फुल ऑब्जेक्ट्स निकल रही हैं, हम फुल ही है ना, फुल 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 ऑब्जेक्ट्स बहुत सारी निकली, स्टिल ही इज फुल। दैट्स हिज क्वालिटी, राइट। फिर उसमें भी बोलते हैं वो चतुश्लोकी भगवत गीता में भी, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द material and spiritual world. Everything emanates from me. The wise who knows this comes to me. Buddha bhava samannvita. The wise who knows this comes to me. Right? तो सभी कुछ उन्हीं से ही निकल रहा है. So that is why he will feel any envy or why he will feel any partiality to anyone. Right? तो जैसे स्कूल टीचर की एग्जांपल होती है ना, कि स्कूल टीचर तो सबको बराबर पढ़ाता है, बट क्या सभी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं सेम? सभी सभी के 100% या सभी के 90% आते हैं? नहीं, किसी के 50, किसी के कोई फेल हो जाता है, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 90, किसी की डिस्टिंक्शन। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। सेम वे कृष्णा की मर्सी इज अवेलेबल टू एवरी वन ऑफ अस, बट इट डिपेंड्स कि हमने कितना बड़ा कटोरा लिया हुआ है। कृष्णा की मर्सी, कॉजलेस मर्सी तो गिर रही है, पर अगर हमारा कटोरा ही छोटा सा है तो उसमें उतनी सी गिरेगी। तो हमें क्या करना है, अपना जो बैगिंग बाउल है उसको बड़ा करना है। तो जितना बड़ा करेंगे उतनी ज्यादा मर्सी। हमें लगता है अगर बड़ा कर दिया तो यार हमारी ये मटेरियल लाइफ हिल जाएगी, वो नहीं हिलेगी, मर्सी और फ्लो करेगी कहीं ना कहीं से। प्रॉब्लम यही है एक्चुअली, हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं चीजें। ये फेथ हम में आ ही नहीं पा रहा कि कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं चीजें। हम कर रहे हैं बट वी आर वेरी माइन्यूट कंट्रोलर। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो हमें अपनी माइन्यूट कंट्रोलर वाली जो चीज है वो लग रही है कि बहुत बड़ी है। हमें लगता है अगर हमने ये एक भक्ति कर ली तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, विच इज अ वेरी वैलिड थिंग, राइट। बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बट कृष्णा टेक्स केयर। अब ये बड़ी सुपरफिशियल या बड़ी वो चीज लगती है, मेरे को भी लग रही है, बड़ी लॉफ्टी लग रही है मुझे भी ऐसे बोलते हुए, क्योंकि मेरी भी रियलाइजेशन नहीं है एक्चुअल में। बट एक बार करके देखेंगे तभी पता चलेगा। और हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं और डिवोटीज की, राइट, दोज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स। तो उनका कहीं ना कहीं कुछ मुझे उनमें वो कमी नहीं दिखती है मटेरियली। और अगर मटेरियली दिखती भी है, इट डजेंट मैटर बिकॉज स्पिरिचुअली दे हैव अचीव्ड, राइट। सो द पॉइंट हेयर इज कि वो मर्सी आ रही है, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितनी लेना चाहते हैं। वी शुड इंक्रीज इट, नॉट बिल्कुल फनेटिकली नहीं इंक्रीज करना चाहिए, बट स्टिल वट एवर वी आर डूइंग वी शुड ट्राई टू स्ट्रेच स्ट्रेच अ लिटिल बिट, स्ट्रेच अ लिटिल बिट, राइट। Alright, so next point, again very beautiful point. He is free from false ego of differentiation. Another quality, कृष्णा में फॉल्स ईगो नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि अहम सर्वस्य प्रभु, सभी कुछ उन्हीं का ही तो है। फॉल्स ईगो तो तब आएगी कि किसी के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, एनवियस होगा, कुछ होगा। वो डिफरेंशिएशन है ही नहीं उनमें, राइट। तभी तो वो क्या बने हुए हैं, अर्जुन के साथ ही प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि वो चैरियट ड्राइवर बने हुए हैं अर्जुन के। कोई 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 बता सकता है जब कृष्णा यहाँ मातलोक पे आए तो उन्होंने कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज करी हैं, मीनियल सर्विसेज, जिसमें पता चलता है कि उनकी फॉल्स ईगो इज जीरो? एक तो अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने, सारथी बने, ये हम सबको पता है। और पता है और क्या क्या किया उन्होंने ऐसा काम मीनियल, जब लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, जो हम। गैया चराई है। गैया चराई हैं, करेक्ट। बट उसमें स्टिल वो एज अ हॉबी ले सकते हैं उसको, इजंट इट, कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं और
इंजॉय कर रहे हैं काइंड ऑफ, वो एज ए इंजॉयबल एक्टिविटी है। ये वाली रथ सारथी वाली इंजॉयबल एक्टिविटी नहीं है वो। यहाँ पे पड़ रहा है एक बार, लेफ्ट मुड़ने के लिए अर्जुन से यहाँ पे पैर लग रहा है, राइट मुड़ने के लिए यहाँ पे लग रहा है, एरोज लग रहे हैं। और ड्राइवर को क्या बोलते हैं, चलो भाई ड्राइवर वो खोलो, दरवाजा खोलो। सोचो, इमेजिन करके देखो, हमें बड़ा इजी लगता है कि यार क्या ठीक है, हाँ चलिए ड्राइवर बने, बट इफ यू एक्चुअली लुक एट दैट, सोचो आप किसी को पिक करने गए हो मंदिर जाने के लिए। अब दीपक प्रभु मुझे पिक करने जैसे आते हैं, हम इकट्ठे जाते हैं मंदिर। तो इमेजिन करो कि वो आए हैं मेरे घर और उन्होंने मेरे लिए, वो कार में से निकले, मेरे लिए दरवाज़ा खोला, और मैंने कहा नहीं नहीं मैं पीछे बैठूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, जैसे वो टैक्सी में होता है। सोचो कैसा फील करेंगे दीपक प्रभु। Isn't it? तुम्हें कोई ड्राइवर जैसा ट्रीटमेंट करे, आप किसी को पिक करने आए हो अपने फ्रेंड को, और वो बोले कि बेटा मैं पीछे बैठूंगा, तू आगे बैठ के चला, कार चला। सोचो। और उनका नाम क्या है, पार्थ सारथी। टेम्पल बने हुए हैं पार्थ सारथी के नाम से, राधा पार्थ सारथी करके, है ना। तो वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो नाम पार्थ सारथी। वेयर एज किसी को बोलो, अरे ये तो पप्पू का ड्राइवर है, इट्स एज गुड एज दैट, सेइंग एज दैट, कि उनकी आइडेंटिटी क्या बनाई है कि उसका ड्राइवर है ये, ड्राइवर आया जी देखो। कैन यू इमेजिन। एक्चुअल में करके देखो तो तब पता चलता है कि फॉल्स ईगो है ही नहीं, राइट। और कौन से केसेस हमें लगते हैं, और कौन से भगवान की लीला में हमें लगता है। सुदामा वाला प्रभु जी, जब सुदामा मिलने गए थे तो उनके पैर धोए थे, सारा कुछ उनकी सेवा की थी वहां पे। हाँ, हाँ। जब सुदामा गए वहां पर तो उनके पैर धोए, उनको सब कुछ। और उनकी एक, देखो, अगेन ड्राइवर बनने में, चैरियट ड्राइवर बनने में क्या है, ही गेव हिमसेल्फ, अपने आप को ही दे दिया ना उन्होंने, अपना अपना पूरा तन मन धन सब कुछ दे दिया अर्जुन को। हम्म। उनके घोड़ों की भी सेवा कर रहे हैं, उनके, उनको चारा डाल रहे हैं, उनकी घोड़ों की भी पॉटी साफ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पूरा अपने आप को दे दिया उन्होंने। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब सुदामा आए तो वो क्या लेके आए थे, चिप्ड राइस, चिप्ड राइस लेके आए। तो क्या हुआ, पता है ना सबको स्टोरी, पहली खाई, सब सब कुछ दे दिया, मटेरियल वर्ल्ड सारा दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे दिया। नहीं कुछ ऐसा, हाँ नहीं, आई थिंक फर्स्ट मुट्ठी में सब कुछ दे दिया इंक्लूडिंग मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सब कुछ दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, अपने आप को भी दे दिया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया उनका, कहती प्रभु ये क्या कर रहे हो, मेरे को भी थोड़ा टेस्ट दिखाओ ना। वो उन्होंने उनसे ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इन्होंने तीसरी भी खा ली तो ये मुझे भी दे देंगे, मुझे भी सुदामा को दे देंगे। दिस इज हाउ ही इज, अपने आप को ही दे देते हैं वो। हाँ, दिस इज हु कृष्णा इज। सो ये हम जब कृष्णा के बारे में सुने, अनलिमिटेड टाइम हम सुनते रहे, इट इज ऑलवेज फ्रेश, राइट। और कौन सी। प्रभु जी गोपियों के लिए वो काफी सारा करते थे, जैसे डांस भी करने को रेडी हो जाते थे, नचाती थी तो नाच लेते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए। हाँ जी, पूजा माता जी आप कुछ कह रहे थे। Hare Krishna. I can't remember the name of that Mahatma Prabhuji, but एक लेडी महाराष्ट्रियन भक्त है, उनके लिए कृष्णा उनकी जगह पे उनकी सास के साथ रहते हैं, पूरा दिन उनका काम करते हैं, क्योंकि वो भजन के लिए गई हुई होती है कृष्णा के। तो उनका स्वरूप लेके उनके घर पे रुकते हैं, पूरा उनकी सास जो जो उनको काम बोलती है ना सारा काम करती है, एट दी एंड सास उसको बांध देती है और मारती भी है, तो वो मार भी खाते हैं उसकी। तो आई जस्ट रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। मराठी मराठी है वो लेडी, बट वो विट्ठल का मतलब कृष्ण की भक्त होती हैं, तो उनके लिए वो मार भी खाते हैं। आई नो, और पूरा आई थिंक एक साल कुछ ऐसा उन्होंने किया, एक साल पूरा रहे। हाँ हाँ हाँ, 6 महीने ऐसे कुछ तो है ड्यूरेशन, आई कैन रिमेम्बर, एंड आई कैन रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट डिवोटी एज वेल। और मैंने फिर कहीं ऐसा, पढ़ा हुआ था वो। हाँ, उसमें ऐसा भी होता है कि लक्ष्मी माता को बोलना पड़ता है कि वापस के लेके आओ कृष्णा को, हाँ आई थिंक क्योंकि सो। वो वहां पे एक साल से कर रही है। और वो अच्छा पास टाइम था, मैंने सुना है वो भी मैंने। हाँ, दिस इज हाउ कृष्णा इज, राइट। और जैसे आपने बोला कि वो गोपियां बोलती थी उनको चलो डांस करो, डांस करके दिखाओ, वो बोलते थे क्या मैं ऐसे क्या फ्री में डांस करूं, मैं नहीं करता ऐसे।
क्या तुम्हारा नौकर समझ रखा है डांस करो? बोलती थी अच्छा तुझे आधी मिठाई देंगे हम, मिठाई खा रही होती है, वो कहती तेरे को आधी मिठाई देंगे, डांस कर। और डांस करते थे आधी मिठाई के लिए। कौन डांस करता है यार आधी आधी मिठाई के लिए? देखो, ये है फॉल्स ईगो, ये है फॉल्स ईगो इनकी। और कोई स्टोरी, और कोई पास टाइम? प्रभु जी नहीं, दूसरा तो इतना भी नहीं पता है। या प्रभु जी, आई रिमेम्बर वन मोर। मैं ना अभी यहाँ के इस्कॉन खोपोली, मेरा छोटा सा गांव जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे तुकाराम महाराज का भी हम लोग रीड कर रहे हैं इस्कॉन सत्संग में एवरी सैटरडे। सो हाँ लास्ट टू लास्ट सैटरडे में ना उन्होंने तुकाराम महाराज का वी आर रीडिंग अभंग। तो हाँ तुकाराम महाराज के लिए ना आ, अपने कृष्णा एक दिन उन्होंने, तुकाराम महाराज ने कमिट कर दिया कि मैं गांव में जितने भी संत महात्मा है ना सबको खाना खिलाऊंगा। बट उनके पास पैसे के, फाइनेंशियली ही वाज वेरी पुअर। सो ही वेंट इन द मॉर्निंग टू अर्न सम मनी बट ही कुडंट मेक एनी मनी। एंड बिकॉज उन्होंने कमिट किया था, कृष्णा केम इन एज तुकाराम महाराज एंड ब्रॉट ऑल द फूड, cooked all the food, fed everyone with his own hands, सारे संत महात्मा को. And in the evening, when actual Tukaram Maharaj ji came, he said, I didn't have any money, so I only got the grain full of rice, a handful of rice. So उनकी वाइफ जो थी ना, उनका नाम भूल गई मैं, उन्होंने बोला अरे आप तो सुबह सुबह सब लेके आए थे और सब बना के खाना सबको खिलाया. So even that day he worked as a, you know, somebody who fed all the sant mahatma, सबको खाया. और another example I remember is जब भी अपना पांडव के सबसे एल्डर ब्रदर जिन्होंने ये किया था ना, उसमें भी उन्होंने सबको अपने हाथों से खाना खिलाया था ना. नहीं, राजसूय, पैर धोए थे, पैर धोए थे राजसूय यज्ञ में। हाँ राजसूय यज्ञ में. हाँ. सो राजसूय। दैट अनदर एग्जांपल आई रिमेम्बर. और तुकाराम महाराज का स्टोरी इतना ब्यूटीफुली नरेट किया था. आई एम सॉरी आई कुडंट नरेट इट प्रॉपर्ली, नहीं बट नहीं। दैट डे ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुक्ड फूड, ही गॉट ऑल द फूड. और उस दिन भी उन्होंने सारे संत महात्मा के पैर धोए, तिलक किया और उनको सत्कार किया. और फिर इवनिंग में ही वेंट एंड तुकाराम महाराज केम बैक होम. करेक्ट, करेक्ट, अमेजिंग अमेजिंग। जैसे राजसूय यज्ञ में पैर धोना मतलब सबसे मीनियल सर्विस है, इजंट इट? पैर धोना आके, वरना कहते हैं चलो मैं गार्लैंड डालूंगा यहाँ पे, मैं ये करूंगा, यहाँ पर आके जो बैठते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम गार्लैंड डालें या ये करें। बड़ी बड़ी सर्विसेज, वो पैर धोने की सर्विसेज। जूते पड़े होते हैं मंदिर के बाहर, कोई सर्विस करता है उनकी कि यार जूते उठा के मैं उसमें रख दूं रैक में? कोई नहीं करेगा। पूजा वाली सर्विस चाहिए, इजंट इट? और एक और बड़ी अच्छी स्टोरी में सुन रहा था गोपियों के साथ। तो गोपियां जो थी वो कृष्णा को बोल रही हैं कि ये गोबर उठाओ, गाय का गोबर उठा के हमारी हेल्प करो, इसको उठा के वो उसकी वो बनाने में काउडन केक्स। तो कृष्णा अगेन सेड क्या क्या मतलब, मैं नौकर रखा हूँ तुम्हारा, मैं नहीं करता ऐसे, मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोलती हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा करते हैं, तुम्हें हम इतना माखन देंगे, तो एक बार तुम हमारी हेल्प करोगे तो इतना माखन मिलेगा तुम्हें। तो कहते चलो ठीक है। तो कहते पर हम अकाउंट कैसे करूँगा? कहते काउंट तुम ऐसे कर लेना, तुम्हारे जब जितनी बार तुम करोगे ना तो तुम्हारी अपनी गाल पे वो गोबर लगा देंगे। तो उतनी बार लगा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं और वो उठवा रहे हैं। और कृष्णा उसमें भी चीटिंग कर रहे हैं, उसमें वो कर नहीं रहे हैं और गोबर हेल्प नहीं करिए, खुद ही गोबर का उसमें अपने मुंह पे लगाए लगाए जा रहे हैं कि मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इमेजिन, आई मीन दिस इज हु कृष्णा इज। मतलब फॉल्स ईगो के नाम पे वो खुद दिखा रहे हैं कि क्या फॉल्स ईगो क्या है, कुछ भी नहीं होती फॉल्स ईगो, जो हम इतनी बड़ी हमने उसको इतना अपने सिर पे चढ़ा रखा है। राइट? तो जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं, द होल पॉइंट के मैं क्यों इतनी हम डिस्कशन इसमें कर रहे हैं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमें जब मिनियल सर्विस मिलती है तो हम बोलने के लिए तो होते हैं प्रभु जी क्या सेवा करें आपकी। जब प्रभु जी आगे से सेवा बोलते हैं, प्रभु ये सर्विस सॉरी ये तो नहीं हो पाएगी, isn't it? तुम्हें जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, मुझे आप ये बोल रहे हो, ये करने को बोल रहे हो, पता है भक्ति शास्त्री हूँ मैं, तुम बोल रहे हो मेरे को ये झाड़ू लगाओ। isn't it? तो बट कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या कर रहे हैं। राइट? जैसे मैंने पहले मेरे साथ भी हुआ ना जन्माष्टमी पे, मैंने आई थिंक पहले बताया था, तो जन्माष्टमी पे मैं गया, मैंने कहा, चलो सर्विस करेंगे आज, तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी, कोई बढ़िया सी सर्विस ढूंढ के करूंगा। जैसे ही मैं गया टेम्पर में एंटर कर ही था अभी, एक प्रभु जी ने आवाज आई, प्रभु जी ये सर्विस करोगे? मैंने कहा हाँ हाँ, मेरा बढ़िया सर्विस मिल जाएगी। कहते ऐसा करो, ये जो बाहर खड़े हो जाओ, मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ एकदम, और वहां पर ना ये 4 स्लॉट हैं गाड़ियों के, यहाँ पर वीआईपी लोगों की गाड़ी आनी है,
तो आपने ये 4 स्लॉट बचा के रखने हैं कि कोई और जो भक्त आ रहे हैं वो ना गाड़ी यहाँ लगा दें। मैंने कहा प्रभु मंदिर के अंदर तो कम से कम आने देते। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैं करने लग गया वो सर्विस। तो बाय चांस खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, जो मिली है सर्विस करते रहो। सर्विस करी, उसके बाद जैसे ही अंदर आया, वहां पर अंदर जसवी प्रभु खड़े थे। उनका प्रभु कहाँ जा रहे हो? मैं कहा प्रभु अभी आया हूँ अंदर। कहते प्रभु ये डीटीज की ये जो थाली है ये लेकर जाओ किचन में। से खाली कहाँ, गाड़ियों की सर्विस से डायरेक्ट मेरे हाथ में डीटीज की प्लेट्स थी। तो इट डिपेंड्स, कृष्णा कृष्णा टेस्ट्स यू, राइट? व्हाट डू यू वांट टू डू? अभी रामनवमी पे क्या हुआ, अभी जो यहाँ पे विंडम में हुआ था, वेरेबी स्पोर्ट्स सेंटर में। तो उससे एक दिन पहले गुरु प्रभु का मैसेज आया, कहते प्रभु सर्विस कोई कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं प्रभु, जो सर्विस बोलोगे कर देंगे हम। कहते वाह। कहते प्रभु ऐसा करो, किड्स को मैनेज करो आप। और अगेन वो किड्स दूसरे ही उधर थे, वो जहाँ पर एक्चुअल प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कोई अभिषेक नहीं देखा, मैंने कोई कीर्तन नहीं सुना, क्लास नहीं सुनी। मैंने कहा सर्विस मुझे ऐसी मिलती है कि निकल जा बेटा, बाहर ही निकल जा। वो वेरी स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें 2 सेक्शन थे। एक सेंटर में वहां पर सारा सब कुछ हो रहा था, और किड्स का सेक्शन टोटली सेपरेट। मेरे को कीर्तन की आवाज सुनाई तक नहीं दे रही थी वहां पे। वहां पे बैठ के 3 घंटे वहीं पर। मैंने कहा कृष्णा क्या टेस्ट ले रहे हो आप? मतलब इतना अनफॉर्चुनेट कि मैं वहां जाके भी आई कुड नॉट इवन सी अभिषेक और लिसन टू कीर्तन। बट आई सेड ओके, इट इज व्हाट इट इज। होंगे कोई पाप कर्म कि कृष्णा अपने पास भी नहीं आने दे। सो बट द पॉइंट इज कि कृष्णा जो सर्विस देते हैं, वी शुड वी शुड जस्ट डू इट। बिकॉज जब कृष्णा नहीं पीछे हट रहे इतनी मीनियल सर्विस करने में, किसके लिए? हमारे लिए ना। अब आप कहोगे नहीं, वो तो उन्होंने सुदामा के लिए करी है, अर्जुन के लिए करी है, हमारे लिए कहाँ कर रहे हैं? हमारे लिए तो नहीं कर रहे। बट अगर आप देखो वर्सेस, वही 15.15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, तो वो हमारे हृदय में ही बैठकर हमारी सर्विस ही तो कर रहे हैं, isn't it? वो भी छोड़ो, ये 18.61 वर्स मैंने नोट करके रखा, आई शेयर इट। टाइम पता नहीं, कुछ लिखो। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्यं ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of the all living entities who are seated on a machine made of material energy. तो इस बॉडी को क्या बोला गया है? मशीन। और इस मटेरियल इस बॉडी को कौन चला रहे हैं? डायरेक्टिंग कौन डायरेक्ट कर रहे हैं? कृष्णा हिमसेल्फ, सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। अगेन अ कंफर्मेशन कि वो हार्ट में बैठ के वो हम सबके लिए आ रहे हैं, हम सभी के लिए हैं, वो हम सबके हृदय में हैं हमें डायरेक्ट करने के लिए। तो दैट इज नॉट ओनली कि अर्जुन के लिए वो वहां पर बैठेंगे, अर्जुन का चैरियट ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा यंत्र रूणानी माया, तो वो जो यंत्र मीन्स इट्स अ मशीन। तो हमारी ये जो बॉडी रूपी मशीन है, इसको चलाने के लिए भी वो एज अ साथी आए हुए हैं। नॉट ओनली फॉर अर्जुना, ही हैज कम फॉर अस। वो हमने पहले भी पॉइंट एस्टेब्लिश किया ना कि एक स्टूल के अंदर जो कीड़ा है उसके अंदर भी कृष्णा है। हमारे इतने मर्सीफुल हैं वो, तो हमारे लिए हैं वो ऑलवेज, राइट? सो अगर वो हमारे लिए इतना नीचे आकर इतनी मीनियल सर्विसेज कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी डू इट? हमें क्यों चाहिए ऑप्युलेंट सर्विस? हमें क्यों चाहिए फ्रंट एंडिंग वाली सर्विस? हम क्यों नहीं कर सकते जिसमें हमें दिखे भी ना कुछ, कृष्णा का अभिषेक तक ना दिखे हमें? हम वो सर्विस क्यों नहीं कर सकते? ना, हमें करनी चाहिए। जो भी सर्विस मिले हमें करनी चाहिए, अपनी फॉल्स ईगो को साइड पे रख के। ऑलराइट, सो की लेसन आज के, आई जस्ट क्विकली समराइज एंड देन विल टेक क्वेश्चंस। So first quality के menial services. When he is ready to do anything for us, we should be also ready to do anything for him, right? Anything and everything for him, because he has done a lot. It's all it takes is कि हमारे पास eyes नहीं है वो देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और क्या क्या किया है, और क्या क्या वो डेली कर रहे हैं हमारे लिए, right? Second is impartially partial. जब वो
आ रहे हैं और वो इम्पार्शियलिटी हमें सिखा रहे हैं, द सेम वे वी शुड, स्पेशली एज अ भक्ति वृक्षा लीडर्स और एज अ भक्ति वृक्षा जिनको जो फैसिलिटेटर्स हैं, वी शुड बी टोटली इम्पार्शियल, नो फेवरेटिज्म व्हाटसोएवर, राइट? बट द वंस हु आर जेन्युइनली वांट भक्ति, जो भक्ति करना चाहते हैं एक्चुअली जेन्युइनली, so we can go an extra mile for them, right? And last main point is no false ego. जब सब कुछ उनको ही बिलोंग करता है तो वी शुड नॉट हैव एनी फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो कैसे आती है? ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये सब कर करके आता है, right? जब हम मंदिर जाते हैं तब हमें क्या लगता है? तब कभी मंदिर जाते हैं तो कभी हमें लगता है कि ये तो मंदिर तो मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा लगा कभी मंदिर जाके? नहीं, मंदिर जाके यही लगा कि वो कृष्णा की प्रॉपर्टी है, वो प्रभुपाद की प्रॉपर्टी है। वो वहां तो जाके कभी नहीं ऐसा लगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। बट जब हम घर आ जाते हैं तब आ रहा है, हाँ ये मेरी, ये घर जो है ये मेरी प्रॉपर्टी है। पोजीशन, पावर, ये सब चीजें आ जाती हैं द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ टेम्पल। तो सेम मेंटेलिटी रहनी चाहिए घर आके भी कि ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्णा का ही घर है। तो दिस वे हमारी फॉल्स ईगो कम होती जाएगी अगर हम कृष्णा की इन क्वालिटीज पे मेडिटेट करेंगे। ऑलराइट, so we'll stop here and we'll see if there are any questions, comments. All good? ठीक है, चलो we'll stop then. हरे कृष्णा। ग्रंथकार श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।